یہ منظر ایک انتہائی خوبصورت شہر سحرنگر کا ہے، جہاں شام کے سائے ہر طرف پھیلتے ہوئے شیشے کی عمارتوں میں سورج کا عکس نہایت دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ سڑک کے دائیں طرف فٹ پاتھ پر لگی سٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی ماحول کو مزید روشن کر رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر چلتے پھرتے لوگوں کے ہجوم میں چلتی ہوئی آئمہ اپنے ایشیائی خدوخال کی وجہ سے سنہرے بالوں والوں کے درمیان نمایاں لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں فون تھامے وہ تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کا قد دراز اور وہ ہر لحاظ سے حسین و خوبصورت تھی۔ موسم سرما کا آغاز تھا اور اسی مناسبت سے ہلکی ہلکی سردی بھی رات کے وقت ٹھنڈک میں بدل چکی تھی۔ ایک سفید ٹاپ سیاہ جینس پر بھورا لمبا کوٹ پہنے ہوئے اس کے کالے بال جو بوب کٹ انداز میں کٹے ہوئے تھے وہ سے بار بار اڑتے ہوئے اس کی آنکھوں پر آ جاتے۔ وہ اپنی سکرین پر کچھ ٹائپ کرتی ہوئی مسکرائی۔ اسی بے خیالی میں سامنے سے آتے ہوئے ایک وجود کو وہ نہ دیکھ پائی اور سیدھا اس کے کندھے سے ٹکرا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اوپس! او گاڈ! اپنا ماتھا مسلتی ہوئی وہ ٹکرانے کی وجہ سے ہاتھ سے گرا ہوا موبائل اٹھانے کے لیے جھکی۔ او آئی ایم سوری، آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ آئمہ نے جھک کر اوپر دیکھا۔ سامنے جو بھی تھا وہ انتہائی خوبصورت اور باوقار تھا۔ آئمہ کی آنکھیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کے کالے گھنے بال جن میں ہلکا سا خم تھا، آنکھیں شہد کے رنگ کی اور انتہائی پرکشش لمبی تیکھی ناک اور ماتھے پر دو بل ہلکی ہلکی داڑھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ ہٹس اوکے، آئمہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر خود بھی سوری کرتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری طرف اس وجیہہ نوجوان نے ایک دفعہ موڑ کر اسے آتے جاتے دیکھا۔ اس لڑکی کی گہری سبز آنکھوں نے اسے اپنا مسحور کر لیا تھا۔ دو الگ الگ راہوں پر جانے والوں کے لیے یہ ایک داستان کا آغاز تھا، اور دونوں ہی قدرت کی سازش سے انجان اپنے آپ میں مگن ہو گئے۔ سحرنگر میں سردیوں میں دھوپ کبھی کبھار ہی نکلتی تھی، لیکن آج سورج اپنی شاہانہ مزاج کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جلوہ افروز ہوا تھا۔ ٹھنڈک میں لپٹے شہر کو کچھ نرم و گرم سی دھوپ کا تحفہ دے رہا تھا۔ آئمہ کی بچی، میری تصویر ڈیلیٹ کرو، یہ آواز اولیمیا کی تھی۔ آئمہ کی سیلفی میں اولیمیا کی آنکھیں بند اور منہ کھلا آیا تھا۔ تب سے دونوں میں نوک جھونک جاری تھی۔ آرٹس اوکے اولیمیا ڈارلنگ، نتھنگ ٹو وری، میں یہ تمہارے ہونے والے شوہر کو نہیں بھیج رہی۔ مزے سے آنکھ دباتے ہوئے آئمہ دوبارہ اس کی پہنچ سے دور جا کھڑی ہوئی۔ آئمہ کی زندگی میں بہار صرف اس کے بابا اور بچپن کے دوست کی وجہ سے ہی تھی۔ آئمہ کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے والد نے اسے بابا اور ماما دونوں کا پیار اور لاڈ دے کر پالا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی، مگر اپنے بابا کے سامنے ان کا ذکر کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس سے وہ اداس ہو جاتے، اور آئمہ اپنی زندگی کی بہار کو ہمیشہ مسرور ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ حماد احمد زادہ، کاروبار کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جنہوں نے آبائی سرداری اور آبائی کاروبار جوائن کرنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے اس بزنس میں وہ 2 سالوں میں ہی اتنی ساکھ بنا چکے تھے کہ کہیں بھی بس حماد زادہ کا نام لیا جاتا اور ڈیلنگ وہیں مکمل ہو جاتی۔ ان 2 سالوں میں وہ اپنا بزنس ایشیا میں ہی نہیں بلکہ جمال ستان تک پھیل چکے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا ہر چند ہفتوں بعد بزنس کے لیے جمال ستان چکر لگتا، مگر اس بار جمال ستان وہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام کرنے آئے تھے۔ حماد زادہ، بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، اور یہ بات تب بہت محسوس ہوتی ہے جب آپ موت کے دہانے پر ہوں اور آپ کا ماجایا آپ کی نظر اور پہنچ سے کھو گیا ہو۔ تمہارے چچا آج سے 25 سال پہلے خاندانی چپقلش کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب میں نے بھی اپنی انا میں ان کے لیے ہر دروازے بند کر دیے۔ آج جب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے ان پر نہیں بلکہ قدرت نے مجھ پر محبت اور شفقت کے دروازے بند کیے ہیں، تو مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ میں اتنا پتہ لگا چکا ہوں کہ وہ جمال ستان کی ریاست سحرنگر کی فضاؤں میں سانس لیتا ہے، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اپنے باپ کی یہ آخری خواہش پوری کر دو، اس کے خون کو اس سے ملوا دو۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کسی بے بسی سے انہوں نے حماد سے یہ سب کہا تھا کہ الفاظ اس کا دل چیر گئے۔ ان سے کیے گئے عہد کو نبھانے ہی وہ سحرنگر آیا تھا۔ سارا دن بزنس میٹنگز میں گزار کر حماد اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے لیٹا۔ آج کے سارے دن کی فلم سی دماغ میں چلی، جس کا اختتام خوبصورت آنکھوں والی لڑکی پر ہوا۔
दिमाग के स्क्रीन पर इस परी चेहरा की तस्वीर उभरी तो उसके लब खुद ब खुद मुस्कराए। वो हसीना इस एक सेकंड की मुद्दत में ही उसके दिल पर हमेशा हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ गई थी। तुम मिल जाओ कहीं मुझे प्रिंस, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। कैसा जादू चला गई है तुम्हारी मदहोश आंखें, मुझ जैसे मर्द के दिल की सर्द जमीन पर भी बहार उतरती महसूस हो रही है। दिल की धड़कन मध्यम मध्यम सी चलती, मोहब्बत की खुमार में मुब्तला होती, हल्के हल्के दर्द के साथ बेतहाशा सुकून दे रही है। मोहब्बत के फरिश्ते ने इसकी मोहब्बत की किताब को मुस्कुराती नजरों से देखा और कंधे उचकाती हुए मुस्कुराए। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर ब्रेक शुरू हुए थे और आयमा और ओलिमिया ने एसट्रेस ब्रेक के नाम पर सारा दिन आवारा गर्दी की। बारिश से लिपटी शहरनगर की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव करते, पार्क्स में पिकनिक मनाते और करोकी में ऊंचे ऊंचे गाने गाते वो जिंदगी को मुकम्मल जी रहे थे। वो दोनों सारा दिन फिरने के बाद डिनर करने एक रेस्टोरेंट पहुंचे। रिसेप्शन पर चेकिंग करने के बाद वेटर की मैयत में वो अपने टेबल पर पहुंची और खाना ऑर्डर करने लगे। हमाद की आज बैक टू बैक 3 मीटिंग्स थीं। सारा दिन उन्हें मसाइल में उलझते हुए गुजर गया। रात को डिनर करने वो इत्तेफाक से इसी रेस्टोरेंट आया था जहां इसके दिल को पागल करने वाली हसीना भी मौजूद थी। टेबल पर बैठे इसे अभी चंद मिनट ही हुए थे जब उसने इस हसीना को अपने से चंद कदम के फासले पर दोबारा देखा। आज इसके साथ एक और लड़की भी थी। आयमा की नाक सर्दी की वजह से हल्की हल्की सुर्ख हो रही थी। हमाद की नजर गैर इरादी तौर पर इस पर गई थी और फिर वापस ना आ सकी। अजनबी होने के बावजूद उसके वजूद में एक ऐसी कशिश थी कि इसे देखते ही बाकी तमाम मनाजिर धुंधले हो गए। अपनी दोस्त के साथ बात बात पर मुस्कुराती और मुस्कुराहट के बाइस गालों में उभरने वाले डिंपल हमाद पर अपना सिहर कर रहे थे। बातों के दौरान जब वो अपने हाथों से मुकाबिल को कुछ समझाने के लिए हाथ चलाती और अपनी आंखों पर आने वाले बालों को मुंह बनाकर झटकती, वो किसी के दिल को अपना मरीज कर रही थी। हमाद अपनी हालत पर सर झटक कर मुस्कुराया। हमाद ज़्यादा गेट ए होल्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप को समझाता हुआ वो जल्द ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अभी मंजिल काफी दूर थी और इसे काफी काम निपटाने थे। अभी वो मोहब्बत जैसे आर्जी में मुब्तला होने का सोच भी नहीं सकता था। अपने आप को समझाता वो कल का लाया अमल तैयार करने लगा। अगले दिन रात 9 बजे वो अपने बाबा के दिए गए पते पर पहुंचा। मुकाबिल एक बहुत बड़ा मैंशन था जो सर उठाए अपनी शान खुद बता रहा था। इसके आने का पैगाम अंदर दिया गया जब दाऊद साहिब ने इसे अंदर बुलाने को कहा। एक मीट की मैयत में वो लाउंज तक आया जहां दाऊद खान अखबार पढ़ते शायद इसके इंतजार में बैठे थे। अस्सलाम अलैकुम, हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने कहा। दाऊद खान तो इसे देखते ही दंग रह गए। सलाम का जवाब देना भी याद ना रहा। वो इसे शक्ल से ही पहचान गए थे। वो अपने चचा से बहुत मुशाबहत रखता था। उन्हें लगा जैसे वो अपनी जवानी को अपने सामने खड़ा देख रहे हों। वो आगे बढ़े और जोर से इसे सीने से लगा लिया। वो जिसको उन्होंने खिलाया था, आज वो इतना बड़ा होकर उनके सामने खड़ा था। वो कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। वो उसके गिले लगे तो रो रहे थे। जब हमाद ने उन्हें नरमी से अलग किया, कैसे हैं आप? इतनी देर बाद मिलने की खुशी में दोनों की आंखों में नमी आ गई। ओ मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो? इतने बड़े हो गए हो? वो गाल पर लुढ़कने वाला आंसू साफ करते हुए बोले, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं, बस अब से मिलने आ गया। ओ वो हंसते हुए बोला। इसने ये नहीं कहा कि बाबा ने भेजा था, कि क्या वो भी आ रहे हैं? अब वो घर वालों का पूछ रहे थे और वो उनके सवालों के जवाब देता गया। अब वो उधर उधर की बातें कर रहे थे जब कानों में आवाज पड़ी। कोई उजलत में सीढ़ियां उतर रहा था। फिर वो वजूद लाउंज में दाखिल हुआ। ओ डैड, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आज आप आ रहे हैं और आकर जगाया भी नहीं। इसकी आवाज मामूल से थोड़ी ऊंची थी। लहजे में खफगी का तासुर और माथे पर बिल लिए आयमा बना उधर उधर देखे बाप से बगलगीर हुई हमाद की आंखें इस पर रुक सी गईं। वो इस जगह उसके होने का सोच भी नहीं सकता था। अभी भी वो बेयकीनी से इसे तकता रहा। जब आयमा की नजर इस पर पड़ी तो वो एकदम खामोश हुई और सवालिया नजरों से बाबा की तरफ देखा। आयमा, आपको पता है ये आपके कजिन हैं, आपके ताया अब्बा के बेटे? उन्होंने बताया तो उसने मुस्कुरा कर हमाद को देखा। वो भी जवाबा मुस्कुराया। हेलो, इसने हाथ बढ़ाकर इसे वेलकम किया, जिसका जवाब हमाद ने हल्की सी मुस्कुराहट और सर के खम से दिया। इसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। दाऊद और हमाद ही सारा वक्त बातें करते रहे।
दाऊद ने आयमा का तारुफ भी करवाया। इस दौरान वो सारा वक्त खामोश ही रही। मेड काफी दे गई थी, जिसे वो दोनों हाथों से पकड़े कभी डैड को देखती, कभी हमाद को, फिर सप लेती, जबकि इन दोनों की काफी टेबल पर धरी थी। जब भी डैड आयमा की बात करते तो वो बस मुस्कुरा देती। इसकी मौजूदगी में इसे नजरअंदाज करना कितना कठिन था ये हमाद ही जानता था। पहलू में बैठी आयमा उसके दिल में धड़क रही थी। दाऊद साहिब ने बहुत इसरार से इसे अपने साथ रहने को ही कहा था। जब वो बहुत पस ओ पेश के बाद मान गया, आयमा हमाद को खाना दो और उसका रोम दुखा दो, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। वो इसके सर पर प्यार करते अपने रूम में चले गए। आ जाएं, डिनर कर लें, वो आयमा बोल कर जल्दी। हमाद ने भी इसके पीछे कदम बढ़ाए। डिनर टेबल पर वो दोनों बैठे थे। वो खाना खा रहा था, जबकि आयमा सलाद का बाउल लिए बैठी रही, गाहे बगाहे नजर इस पर डालती। अभी वो इसकी जानिब देख ही रही थी जब इसने इसे देखा। दोनों की नजरें चार हुईं तो वो नजरें झुका गई। गहरे जामनी रंग के लिबास में इसकी रंगत मजीद चमक रही थी। बार बार चेहरे को छूती बालों की चंद शरीर लटों को कान के पीछे और साथी इसकी मेहंदी से सजे मखरूती उंगलियों वाले नाजुक हाथ हमाद के दिल को किसी और जानिब देखने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। इसने खाना खाया तो वो इसे रोम में ले गई। ये आपका रोम है। दरवाजा खोलते ही वो बोली, थैंक्स। वो हल्का सा मुस्कुराया। डैड आपका बहुत जिक्र किया करते थे, उन्होंने आपको बहुत याद किया, वो बोली, जिसके जवाब में वो बस सर हिला गया। वो इससे बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर उसके सामने बोला ही नहीं जा रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो भी चली गई। दरवाजा बंद करके वो बेड पर लेटा। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बहार बनकर उतरी, जैसे कारून का खजाना हाथ आ गया हो। आंखें बंद करता वो इसका चेहरा देखता। वो इसे देखकर मुस्कुराई थी। वो इसके पहलू में बैठी थी। इसने इससे हाथ मिलाया था। अपने हाथ को तकते वो बेइख्तियार अपनी हथेली चूम गया। अपनी इस हरकत पर भी शर्मिंदगी से इसने आंखें मींची। तुम टीन एजरस जैसा भी यूं क्यों कर रहे हो हमाद? अपने दिल को झड़कता वो आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। रात तकरीबन 12 बजे इसे प्यास लगी जब वो पानी के लिए किचन में दाखिल हुआ। आयमा अंदर अंधेरे में आइस करीम खा रही थी जब उसने कोई ही विला देखा। कौन? डर के मारे आवाज नहीं निकली। इसकी आंखें जब अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो वो इस वक्त फरीज के पास खड़ा था। जब इसे आयमा की आवाज आई, इसे चीखने के लिए मुंह खोलता देखकर हमाद ने इसके लबों पर हाथ रखकर चीख रोकी। इसी जिदोजहद में वो बेसाख्ता ही हमाद के हिसार में आई। पीछे फरीज और सामने इसका जिन जितना वजूद। हमाद की गर्म सांसें आयमा की गर्दन झुलसा रही थीं। इससे अलग होने के चक्कर में आयमा का सर सीधा हमाद के सीने से टकराया। इसकी सांसें आयमा की सांसें भी बोझल कर रही थीं। हमाद तो इस लम्हे की जद में खड़ा अपना बाजू इस हुसैन वजूद को देख रहा था। अब किचन में आयमा ने इससे अलग होते नजरें चुराते पूछा। बेशक वो आजाद माहौल में पली बड़ी थी, मगर मशरकी शर्म और लिहाज आज भी जिंदा था। वो पीछे होता बालों में हाथ फेर गया। हाँ, वो रोम में पानी नहीं था तो बस। ओहो, मैं पानी रखना भूल गई। आई एम सॉरी। वो जल्दी से फरीज से पानी निकाल कर जुग में डालती, इसके हाथ में जुग पकड़ाती अपने कमरे में भागी। रूम में आते ही आयमा सर को कंफर्टर में लपेटती लेट गई। गाल शर्म से दहक रहे थे और दिल खानों में धड़कता बेचैन कर रहा था। वो एकदम ही इसके हिसार में आई थी और हमाद की खुशबू उसकी सांसों में रीछ सी गई थी। अगली मुलाकात उनकी नाश्ते पर हुई थी। ब्रेड खाते नजर इस पर पड़ी थी। जब इसने देखा तो सटपटा कर नीचे देखने लगी। इसका शर्माना हमाद को लुत्फ दे गया। इसके बाद वो इस जानिब दानिस्ता ना देखती, जबकि वो बार बार इसे देखता। नाश्ते के बाद वो डैड के साथ उनकी सट्टी गया। सट्टी पहुंचकर दाऊद साहिब से इसने वापस अपने मुख चलने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो आखिर क्यों चाचू, आप वापस क्यों नहीं जाना चाहते? बाबा आपको इतना याद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके मरने से पहले आप मिल लें। वो हर लिहाज से उन्हें कायल करने लगा। मैं नहीं जा सकता हमाद, तुम्हें इल्म नहीं है। वो चेयर के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गए। मुझे कोई बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसने अपने बाप से भी पूछा था, उन्होंने नहीं बताया। अब चाचू भी नहीं बता रहे। अभी वो बात कर रहे थे जब उसे कॉल आई कि बाबा इमरजेंसी में है। वो फोन सुनता जल्दी से कोट पहनने लगा
क्या हुआ है हमाद? किसकी कॉल थी? वो भी परेशान हुए। बाबा अस्पताल में है, इमरजेंसी में। इससे पहले वो बाहर भागता, दाऊद भी इसके साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने कॉल पर सेक्रेटरी से कहकर अपनी भी सीट बुक करवा दी। अभी वो आयमा को साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे। न जाने वहां क्या रिएक्शन होता। ऐसे ही वो परेशान होती। वो पहले घर आए क्योंकि हमाद का बैग इधर ही था। रूम से बाहर निकलते ही इसे आवाज आई, बाबा आप क्यों जा रहे हैं बेटा? ताया अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं जाऊंगा तो आपको भी बुला लूंगा। वो उसे साथ लगाए नरमी से समझाने लगे। हमाद को देखते वो उनसे अलग हुई। आयमा ने उसे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा। हमाद को महसूस हुआ वो इसके बाबा के बाबा को साथ ले जाने पर गुस्सा है। अब ओलिमिया को कॉल करके बुला ले। अकेले मत रहिएगा मेरी प्रिंसेस। इसका माथा चूमते हुए इसे नरमी से हिदायत करते वो दोनों चले गए। वो दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आए। गाड़ी में बैठते हमाद की नजर परेशान सी खड़ी आयमा पर पड़ी। आयमा को इसके चेहरे की परेशानी साफ नजर आई। गाड़ी उनके घर की हुदूद से बाहर निकली तो वो खुद भी अंदर चली गई। दाऊद खान और हमाद सीधा अस्पताल आए थे, जहां पहले से हमाद की 2 बहनें और मां मौजूद थी। उन्हें देखते उनकी तेवरी चढ़ी। आज आ गए हो? सनम बेगम गुस्से से कुछ बोलने लगी, जब हमाद ने उन्हें यह कहकर खामोश करवा दिया कि अस्पताल है, इसका लिहाज कर ले। मगर जब तक अस्पताल में रही, कीना तूज नजरों से टेंशन में घिरे दाऊद को देखती रही। जबकि हमाद कभी किसी डॉक्टर को कॉल कर रहा था, कभी किसी को। दाऊद ने भी जमाल सप्तान से स्पेशलिस्ट बुलाए। ना बीबी ना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सनम तो जैसे भरी बैठी थी। भाभी, जो अंदर लेटा है वो मेरा भाई है, उन्होंने भी जवाब दिया। तब हमाद ने मां को घर भेज दिया। काफी देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बाबा के होश में आने का बताया। हमाद और दाऊद अंदर की जानिब लपके। आंखें खुलते उन्हें जो चेहरा देखने को मिला था वो अपने छोटे भाई का था, जिससे प्यार करने के बावजूद 25 साल बाद देखा था। दोनों की आंखें भीगे। माजी के कांटे दोनों के जख्म फिर से हरे कर गए। वो उनके गिले लगे रो रहे थे, नादिम हो रहे थे। देख ले बाबा, अब का काम कर दिया मैंने, अब इनाम तो बनता है। वो माहौल को खुशगवार करने के लिए बोला। उन्होंने इसे भी इशारा करके बुलाया। अब एक तरफ दाऊद और एक तरफ हमाद गिले लगे थे। मेरे दोनों बेटे, वो मुस्कुराए। भाई, आपको पता है आपकी भतीजी भी है। जब भाइयों के दरमियान गलतफहमी की दीवार टूटी तो वो बोले, अरे मेरी एक और बेटी भी है। कहाँ है? बुलाओ उसे। वो बेताबी से बोले। भाई, अभी वो साथ नहीं आई, मगर उसे भी बुला लेंगे, अब ठीक हो जाएं पहले। दोनों मुस्कुराए। हमाद, तुम अभी जाओगे और बच्ची को लाओगे? जाओ, वो हुक्म देते बोले। बाबा, अब पहले डिस्चार्ज तो हो ले। मगर उनकी जिद पर अगले दिन ही उसे दोबारा जाना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो घर में कोई नजर न आया। वो लिविंग रूम में गया तो आयमा बीबी को वहां मजे से सोफे पर सोता पाया। बैग वगैरह रखकर उसने इस पर चादर दी। हीटर चल रहा था, इसलिए ज्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। दूसरे सोफे पर बैठा वो उसे की वारफ्ता निगाहों से देखने लगा। नजरें इस वजूद से हटने से इनकारी थीं। नींद में इसने करवट ली थी। इससे पहले वो कुछ करता वो धड़ाम से नीचे गिरी। वो अल्लाह जी, वो नींद में बोली। वो मुस्कुराया। नींद में इसने आंखें खोली तो सामने हमाद को बैठा देखा। आंखें मिले, मगर वो वहीं बैठा दिखा। वो उठी। इसे उठता देख वो भी खड़ा हुआ। अब यहां? अभी कल ही तो वो गया था, इसीलिए इस लम्हे इसका उधर होना हैरानगी का बाइस था। जी, बाबा भी आ गए? वो चहक कर बोली। नहीं, उन्होंने आपको लेने भेजा है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधता उसके करीब आ खड़ा हुआ। ओ वाह, मैं भी पाकिस्तान जाऊंगी। रुकी, मैं पैकिंग करके आई। वो ऐसे कह रही थी कि अभी साथ के शहर जाना हो, अभी नहीं करे, कल रात की फ्लाइट है। वो उसे आगाह करता अपने रूम की जानिब बढ़ा।
कोई 15 मिनट बाद वो काफी लाई थी। मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर्स में थे, तभी ये काम उसे करना पड़ा। वो भी बात लेकर निकला था जब उसकी नजर आयमा पर पड़ी। आयमा ने मुस्कुरा कर काफी पेश की। इसकी बहुत जरूरत थी। थैंक यू आयमा, वो मग पकड़ता उसकी आंखों में देखता बोला। आर्ट्स ओके कहकर वो जाने लगी थी जब उसने इसे साथ बैठकर पीने का मशवरा दिया। अब मेहमान था, वो इतनी मुरव्वत तो वो निभा सकती थी, इसलिए काफी लिए बेड के साथ रखी काफी चेयर पर आ बैठी। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। क्या करती हैं आप? काफी पीते इसने सवाल किया। अभी पढ़ रही हूं, उसने जवाब दिया। हो गुड। और आपकी मामा कहाँ हैं? इसे नहीं मालूम था कि उसकी चची की वफात हो गई थी। उनकी वफात हो गई थी। ओ सॉरी आयमा, मुझे इल्म नहीं था। जुवाबा वो हल्का सा मुस्कुराए। वो उससे बातें करना चाहता था मगर सवाल ही नहीं कोई आ रहा था। सूझ नहीं आ रही थी कि मजीद बात कैसे करें। चंद मिनट दोनों के दरमियान खामोशी हाइल रही। फिर वो बोला, आपने मुझे बताया था, चाचू मेरे बारे में बताते थे। उसने बात करने के लिए ऐसे ही पूछ लिया। अब वो उसे बता रही थी जो उसे मालूम था। उन्होंने बताया कि अब कैसे उनसे रिश्वत बटोरते थे बचपन में। वो उसकी बचपन की बात इसे ही बताकर मुस्कुराई। हाय अल्लाह, ये भी बता दिया मेरा सीक्रेट। लेकिन ये करके अच्छा नहीं किया उन्होंने, वो दहाई देता बोला। इसके लहजे पर वो खिलखिलाकर हंसी। इसकी खिलखिलाती हंसी फिर उसके दिल में उतरी। काफी पीकर वो मग लिए जाने लगी। अब डिनर करेंगे? खाने का याद आते ही इसने पूछा। जी, एक लफ्जी जवाब आया। वो उसे आने का कहकर चली गई। फ्रिज से खाना निकालकर वो गर्म कर रही थी जब वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उनके दरमियान अच्छा खासा फासला था, मगर उसके मुड़ते ही वो डर गई। पांव फिसला। इससे पहले वो गिरती, हमाद जल्दी से आगे बढ़ता उसे कमर से थामता गिरने से बचा गया। सॉरी, वो खजिल होते पीछे हटी। मेरी शक्ल ड्रैकुला जैसी तो नहीं थी जो अब डर गई। अब वो इसकी बात का किया जवाब देती, इसलिए खामोश रही। खाना निकालकर उसने डाइनिंग टेबल पर लगाया। वो खुद पहले ही खा चुकी थी, बस उसको कंपनी देने के लिए बैठी रही। सुबह तकरीबन 9 बजे वो उठा था। जॉगिंग करके वो तकरीबन 10 बजे लूटा, मगर आयमा बीबी अभी तक सो रही थी। मेड ने उसे ताज़ा जूस बना कर दिया। हमाद ने उसे आयमा को उठाने का कहा। मिस आयमा, उठ जाएं, नीचे सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेड ने इसे दोबारा जगाया। मैडम, नीचे सर इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उठ जाएं। क्या वो जानती थी कि आयमा नींद की कितनी पकी थी, और नींद में इसे अपना डिस्टर्ब होना जरा पसंद नहीं था। अब जाएं, मुझे सुना है, वो नींद में ही बोली। मैडम, सर को बोले वो भी सो जाएं, सख्ती से कहती करवट बदल कर वो फिर नींद की वादी में गुम हो गई। मैडम, सर कह रहे हैं उठकर नाश्ता कर ले, फिर पैकिंग भी करनी है। ओह, मुझे नहीं करनी पैकिंग वीकिंग। तकिए के नीचे से आवाज आई। तो फिर आपको पाकिस्तान भी नहीं जाना होगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं। इसकी बात पर वो सीधी खड़ी हुई थी। वो जो कब से इसे नीचे ना आता देख इसके कमरे में आया था, इसके बयानात से महफूज होता बोला, मैं तो जाग रही हूं। आंखें बंद किए बमुश्किल खड़ी आयमा की बात पर वो हंसी रोकता बाहर चला गया। तकरीबन 11 बजे उन्होंने नाश्ता किया और फिर चाय पी। अब आयमा अपनी पैकिंग कर रही थी। 4 बजे के करीब वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे। पाकिस्तान पहुंचते ही वो सीधा अस्पताल आए थे। वो भागकर बेड से मिली थी। दाऊद खान ने हैदर साहिब को आयमा से मुतारफ करवाया। उधर आइए मेरी बेटी, बाहें फैलाए हैदर खान शफकत से बोले। वो उनके गिले लगी, उनसे बातें करने लगी। वो मुस्करा कर बातें करती कितनी अच्छी लग रही थी। हमाद उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो वो उन्हें घर लाए। सनम खुशी खुशी गेट तक आए। दाऊद को देखकर मुंह बनाया, मगर असल तोते उनके पीछे हमाद के साथ आती किसी मॉडर्न सी लड़की को देखकर उड़े थे।
अंदर आते ही सबसे पहले सनम ने इसके कपड़ों पर तनकीद की थी। वो नासमझी से उन्हें देख रही थी। आखिर उसके लिबास में क्या कमी थी? हमाद भी पहलू बदल कर रह गया। दाऊद भी थोड़े जज्बो इज़्तिराब में नजर आए, मगर उन्हें टोका हैदर ने, सनम, पहली मर्तबा बच्ची आई है, इसे आते ही शुरू ना हो जाओ। सनम बेताब होकर रह गए। इसके थके होने के बाइस उसे सोने के लिए कहा गया। कमरा दिखा दिया गया था। जब वो रूम में दाखिल हुई तो सीधा सोने को लेटी। हमाद भी अपने रूम में सोने चला गया, जबकि वो दोनों भाई अब उनका मुस्तकबिल सोच रहे थे। दाऊद, मैं चाहता हूं कि तुम आयमा को हमें दे दो। मतलब, मैं हमाद के लिए आयमा का हाथ मांग रहा हूं, वो बोले तो दाऊद सोच में पड़ गए। भाई, मुझे हमाद से कोई मसला नहीं, मगर भाभी। उन्होंने बात बीच में छोड़ दी। दाऊद, अक्ल को हाथ मारो, जिंदगी दोनों ने गुजारनी है कि भाभी ने उन्हें एतराज किया। वो रद्द हो गए। वो चाहते भी थे नहीं थे कि इतने अरसे बाद मिले भाई से ताल्लुकात दोबारा खराब हो जाते। उन्होंने हामी भर ली। ये फैसला बच्चों को सुनाया गया तो आयमा तो रोने लग गई। बाबा, मुझे हमेशा के लिए यहां नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। वो उसे समझाते रहे, अपनी ख्वाहिश का बताकर जिताया, अपने दिल के सुकून का वास्ता दिया। उनकी बातों पर वो ये कहकर खामोश हुई कि जो आपको अच्छा लगता है मैं राजी हूं। वो इसका माथा चूम कर बाहर निकले। जबकि दूसरी जानिब हमाद के इकरार पर बाप तो खुश हुआ, मगर अलहदगी में मां नाराज हो गई। वो दोनों एक दूसरे को सोच रहे थे। आयमा तो सोच सोच कर शर्मा रही थी। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी मिल जाती है? वो इस फैसले पर दिल ओ जान से राजी था। नहीं, सिर्फ मुझे मिली है, बाकियों को तो जुए शेर लाना पड़ता है। ये दिल धमाल डाल रहा था और सांसों में तरावट आ गई थी। मेरा बेटा, तुम्हें क्या पता इसका पूरी मां पर गई है, घनी मुसन है। पहले इसकी मां मेरा दिल जला गई, अब बेटी आ गई है मेरा कलेजा जलाने। इसकी मां उसका इकरार इनकार में बदलने आई। मां वो ऐसी नहीं है, वो समझाने की खातिर बोला। जाने क्यों मां ने हजारों शिकवे पाले हुए थे, कर दिया ना उसने तुझ पर जादू। इसकी मां ने भी यही कहा था। तुझे क्या पता उन औरतों की चालाकियों का। मेरा बेटा, हर दाव खेल रही थी कि वो इनकार कर दे, मगर रात तक उन्हें मालूम हुआ कि आयमा दाऊद शाह तो करोड़ों किया अरबों की प्रॉपर्टी की मालिकन थी जो उनके पास था। आधा हिस्सा तो वहां से मिलता और बाप का बिजनेस। सनम की आंखों में वाजे लालच आया। अगले दिन निकाह की छोटी सी तकरीब रखी गई। हमाद ने रुखसती से फौरन इनकार कर दिया। निकाह के बाद दोनों को साथ साथ बिठाया गया। इसके पहलू में बैठी आयमा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। खुश हमाद भी सांस सांस तक मुतमईन वो खुश था। तकरीब से वापसी पर वो इसे थामता गाड़ी तक लाया। जब उसकी दोनों बहनें पास आए, भाभी, भाई। भाभी को पीछे बिठाते हैं। हमाद का अरमान था कि वो खुद उसे अकेले ड्राइव करके लेकर जाए, मगर बहनों को वो कुछ कह ना सका। एक बहन आगे बैठ गई और एक पीछे। आयमा के माथे पर वाजे बिल पड़े थे। जो भी था वो आजाद मुल्क से आई थी। भला कौन किसी की शादी में टांग उड़ाता है। जबकि दूसरी गाड़ी में दाऊद, हैदर और सनम आ रहे थे। दोनों भाई बहुत खुश थे। एक और रिश्ता उनके पहलू को मजबूत कर गया। गाड़ी हैदर ही ड्राइव कर रहे थे। खुशी में वो दाऊद से बातें करते पुरजोश थे, जब दूसरी तरफ से आते ट्रक को न देख पाए। गाड़ी जोरदार धमाके से इसमें लगी। हैदर और दाऊद तो वहीं मौके पर दम तोड़ गए, जबकि सनम को काफी चोटें आईं। हमाद लोग जब घर पहुंचे तो उन्हें इल्म हुआ। वो वहीं से सब छोड़ छाड़ अस्पताल पहुंचे। आयमा अपने निकाह के जोड़े में ही अस्पताल आई थी। बाप को मुर्दा देखकर हवास काबू करना मुश्किल हो गया। डेड, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्लीज वापस आ जाएं। वो रोते हुए संभाली नहीं जा रही थी। डेड, मेरा तो कोई भी नहीं रह गया यार। हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। मैयत घर ले आए। सारे रास्ते वो रोती आई।
वो बाप की चारपाई के पाए सीने से लगाए बातें किए जा रही थी। फिर मैयत की तदफीन के लिए लोग आए। गम के वो बेहोश हो गई और ऐसा अजीब व गरीब कीना परवर खानदान था कि किसी ने इस रोती बिलकती आयमा की खबर ना ली। हमाद जनाजा पढ़कर आया तो उसे बेहिस्सो हरकत लाउंज कारपेट पर लेटे पाया तो वो करीब आया। आयमा, आयमा, उसने गाल तपते पाई मगर बेसूद। बेहोश आयमा उसे सख्त परेशानी से दो चार कर गई। वो उसे बाजुओं में उठाए अपने रूम में लाया। पानी के छींटे मारे तो वो होश में आए। होश में आते ही वो दोबारा रोना शुरू हो चुकी थी। हमाद डेड, वो रोते हुए बोली तो हमाद ने उसका सर नरमी से अपने कंधे से लगाया। उसका भी बाप मरा था, उसका भी गम ताजा था। वो उसके सीने से लगी ऊंचा और रोती रही और हमाद के खामोश आंसू खामोशी से इसके बालों में जज्ब हो रहे थे। गम बड़ा था और सब्र वक्त के साथ ही आना था। हमाद की उम्मी अभी भी अस्पताल थी। वो अगले 2 दिन अस्पताल रहा, जबकि वो इसी कमरे तक महदूद हो गई थी। न किसी ने खाने का पूछा, न इसने मांगा। 2 दिन बाद वो मां को अस्पताल से लाया था। उन्होंने आते ही बैन शुरू कर दिया। हाय, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जाने कितनी काली किस्मत है। उधर घर में पांव रखा, उधर घर की खुशियां छन गईं। जैसी मां थी, बेटी भी वैसी ही होनी थी। काले जादू करने वाली वो जाने क्या क्या चीजें इससे मंसूब कर रही थी जिसका उसे इल्म तक ना था। हमाद ने मां को रोकने की कोशिश की थी मगर कुछ कर ना सका। वो अपने कमरे में जाने लगा जब मां ने रोक लिया। हमाद, तुझे इल्म नहीं, कातिल खानदान से है। इसकी मां ने तेरी सगी खाला का कत्ल किया था, इसीलिए तो 25 साल सामने नहीं आए। अब इसका बाप तेरे बाप को खा गया। ये तेरे साथ जाने क्या करे। मेरा बेटा, मत जा। वो उसे अपने पास बिठाए बोली, तुझे इल्म है कि कैसे इसकी मां ने काला जादू करवाकर तुम्हारे चचा से शादी की थी। अच्छी भली इसकी शादी मेरी बहन से हो रही थी। वो वाकयात को इस तरह बयान कर रही थी जैसे यही सब सच हो। हमाद वहां से निकलकर अपने दूसरे अपार्टमेंट आ गया। आंखों में सुर्ख डोरे साफ दुखते थे। उसने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। इसकी पसंदीदा औरत इस वक्त उसके घर थी और बेबसी ये थी कि वो कातिल खानदान से थी। वो मां की बातों में आ गया था। मां की ज़बानी वाकयात सुनकर और मां की तकलीफ से बचने के लिए वो इसे वहां छोड़ आया। ये नहीं जानता था कि जिसको छोड़कर आया है इस पर जमीन तंग होने वाली है। हैदर और दाऊद 2 भाई थे। जब वालिद के इंतकाल के बाद हैदर ने दाऊद को अपने बच्चों की तरह पाला। उनकी शादी को 2 साल हुए थे जब अल्लाह ने उन्हें हमाद की सूरत बेटा दिया जो ज्यादा करीब अपने चचा से था। सनम दाऊद की शादी अपनी बहन से करना चाहती थी और उनकी बहन भी आए रोज उधर आई होती। सनम ने अपनी बहन को खूब सब्ज बाग दिखाए थे, मगर जब शादी की बात हुई तो दाऊद ने अपनी पसंद की शादी करने का कहा। उनकी शादी को 2 साल हुए थे जब अल्लाह ने उन्हें हमाद की सूरत बेटा दिया। सनम दाऊद की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी और दाऊद की पसंद की शादी के बाद सनम की बहन ने खुदकुशी कर ली थी, जिसका इल्जाम वो दाऊद की बीवी पर लगा देती। 1 साल तक सनम ने दाऊद की बीवी को बहुत तंग किया, जिसके बाद वो जमाल सत्तान शिफ्ट हो गए। ये वाकया इन दोनों खानदानों के दरमियान ताल्लुकात में एक गहरी दरार डाल गया। आयमा घर में हर तरह से अकेली रह गई थी। हमाद के चले जाने के बाद इसकी सास और नंदों ने इसे मजीद तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन इसकी सास ने इसे अपने कमरे में बिलाकर कहा, तुम्हारी मनहूस किस्मत ने मेरी बेटी को इतना दुख दिया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या किया है। इस घर में खुशियां कभी लूट कर नहीं आ सकती जब तक तुम यहाँ हो। आयमा को लगा कि इसके साथ हर कोई गलत बर्ताव कर रहा है और उसकी जिंदगी एक कैद खाना बन चुकी है। चंद दिन बाद सनम ने इसके सामने कुछ प्रॉपर्टी के कागजात रखे और उससे कहा, यह तुम्हारे वालिद की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम उन कागजात पर दस्तखत कर दो, इसके बाद तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। आयमा ने फौरन दस्तखत करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपनी सास की नीयत पर शक होने लगा था।
रात को हमाद वापस लौटा। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थीं। इसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वो अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर चला गया था। वो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ तो आयमा को रोते हुए पाया। हमाद ने इसे अपने गिले से लगाया और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे इस तरह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। आयमा ने इससे सवाल किया, आपने मेरा इतना इंतजार क्यों किया? आपको मेरे बारे में तो कुछ भी मालूम नहीं था। हमाद ने इसे समझाया कि इसकी माँ ने इसे गलत मालूमात दी थी और सच्चाई तो ये थी कि वो इसकी माँ की वजह से इससे नफरत करने लगा था। इसके बाद इसने अपनी माँ और बहनों से भी बात की और उनको बताया कि आयमा के साथ अच्छा सलूक करें या फिर वो सबसे ताल्लुक खत्म कर देगा। हमाद ने आयमा को सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए और वो दोनों वापस शहरनगर चले गए। आयमा को फिर से इसके ख्वाबों का शहर मिल गया, जहां वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दोबारा से कोशिश करने लगी। 1 साल बाद दोनों ने बहुत कुछ हासिल किया। हमाद ने अपना कारोबार मजीद बढ़ा लिया था और आयमा ने अपनी तालीम भी मुकम्मल कर ली थी। आयमा ने यह सब हासिल करने के बाद एक नया कारोबार शुरू किया। अब वो एक कामयाब खातून बन चुकी थी। एक दिन वो दोनों काफी पीने बैठे थे जब हमाद ने इससे कहा, आयमा, तुमने साबित कर दिया कि तुम हर चीज कर सकती हो। तुमने खुद को दोबारा हासिल किया। आयमा ने कहा, जी हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल की है और अब मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।